In recent years, e rickshaws have come to dominate the street of Delhi. They are considered fast, cheap, and convenient by most commuters. Not to say that they symbolize the future as envisioned by the policy makers of an environment friendly, tech savvy national capital. Sadly, one can still see rickshawalas paddling around the old three wheelers, straining to keep up with Delhi's fast moving traffic. One might have considered them extinct in the face of an increasing presence of e rickshaws, but it is not so. In 2020, the Delhi government, to accelerate the use of e rickshaws, brought forth its electric vehicle policy, which offered attractive financial incentives. The incentives included a subsidy of rupees 30,000 and 5% subvention on loans. Despite the subsidies being highest in India, as claimed by the officials who oversee the policy, the rickshaw pullers have remained reluctant to make such a transition. The year-wise data on the registration of e-rickshaws in Delhi has showed a decline. While over 19,000 e-rickshaws were registered in Delhi in the year 2019, only around 11,000 were registered in 2021. Now, the reason for such a decline can be attributed to anything from the pandemic to other harsh realities on the ground. For rickshaw pullers, extreme poverty is a major issue. They can't even think about buying e-rickshaws, as they don't even own the vehicle they drive. व्यक्तिगत रिक्शा यहाँ नहीं चलता है। इसलिए नहीं चलता, हम लोगों को उतना पैसे नहीं है। जैसे हम लोग ले भी लेंगे कर्जा उठा के तो 400-500 रुपये कमाने का कहाँ से हम भरेंगे, आप ही बताइए। 400-500 रुपये किराया मांग रहे हैं। और उसके बाद भी ई रिक्शा से जो ई रिक्शा का 400 रुपया किराया है। हम लोग अगर 400 रुपया उनको अगर देंगे तो फिर हम लोग को क्या बचेगा। तो इसके लिए हम लोग ये चलाते हैं, जो भी 400-500 कमाते हैं तो वो सूखा बचता है, किसी को देना नहीं पड़ता। इसका किराया 50 रुपये है। कमाई हो जाता है 600, 500, 700 भी हो जाता है कभी। हमको इसी में फ़ायदा होता है मैडम। हम फ़ायदा जैसे कि उसमें 400 रुपये किराया देना पड़ता है, तो 800-1000 रुपये किसी दिन नहीं होता है, किसी दिन उसमें मतलब घर से अपना पैकेट से लगाना पड़ता है और उससे जो है हमको नुकसान हो जाता है। हाँ, इसमें हमारा फ़ायदा होता है, इसमें सही। इसमें जो है हमारा जो भी कमाया 100-200 रुपये खर्च होता है और जो भी कमाया हमारा अपना पैकेट में रहता है। इसका किराया 50 रुपये है। तकलीफ़ तो इंसान तो मेहनत करने से तकलीफ़ तो होता ही है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो फिर पैसे कहाँ से आएगा। While rickshaw pullers have to pay only rupees 50 to rent cycle rickshaws, they find the rent of e-rickshaw, which ranges from rupees 300 to rupees 400, exorbitant. They believe paying that much money in rent will eat up their profits, as they live mostly in rented homes and have other expenses to think about. This is in stark contrast to businessmen who rent e-rickshaws, as they comfortably earn around rupees 30,000 to rupees 40,000 monthly just in profits. तो जैसे हम चलाते हैं तो यहाँ तो हमारा एक सवारी हो या 2 सवारी एक घर का होता है तो बैठ के जाता है तो मेरे को 30 रुपया देता है। आज जैसे सिंगल हुआ लेडीज राम कॉलेज पॉलिटेक्निक जाते हैं तो 20 रुपया मुझे मिलता है। मतलब वो रिक्शा के लिए हमारा उतना पैसे ही नहीं है कि हमारा घर भी नहीं है। ये नहीं किराए पर चला रहे जी, 40 रुपये किराया दे रहे हैं, 40 रुपये किराया दे रहे हैं और 1200 रुपये महीना हम दे रहे हैं इनको। और उसको 400 रुपये 500 रुपये किराया देंगे, हमारा घर भी नहीं है। Even the e-rickshaw drivers rent their vehicles instead of buying them, as they don't have access to money that can buy an item which is over worth 1 lakh. Those who are aware of government's financial incentives for the purchase of e-rickshaws still remain skeptical in availing them. इसलिए नहीं खरीद पा रहे कि 2 बच्चे हैं, किराए का घर है, खाना पीना चलाना, 400-500 की इनकम है, उसमें सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद बच्चों का खर्चा, अपना खर्चा, इतना पैसा बचत ही नहीं आता है। घर ही नहीं चल पा रहा है, रिक्शा कहाँ से खरीदें। सरकार हमारे लिए कुछ करती ही नहीं, हमारे लिए कुछ सोचती नहीं। गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है और पैसे वाले और पैसे वाले बनते जा रहे हैं। मतलब 50,000 रुपये पेमेंट जमा करनी पड़ेगी। 50,000 रुपये तो हमने आज तक देखे ही नहीं है। पहले 50,000 रुपये जमा करेंगे तब हमें रिक्शा मिलेगी, उसके 6 महीने के बाद केजरीवाल सब्सिडी देगा। ना हमारे पास 50,000 रुपये हो पाने, ना हमें रिक्शा ले पाना। नहीं, 50% किराए पे हैं, 50% अपने हैं, जिनके पास बचत है या कर्ज लिया या ज़मीन बेच दी उन्होंने अपना खरीद लिया। अब हमारे पास तो घर और ज़मीन ही नहीं है, हम क्या बेचें।
जैसे ज़्यादा जिस दिन काम निकल गया 700-800, नहीं तो 600-700 ऐसे होते हैं, तो 400 रुपये किराया लग जाता है, 200-300 बचते हैं, उस कमरे का किराया देना पड़ता है। किराया मैडम पैसा होना चाहिए, तो उसमें अपनी चीज़ होती है। अब किराए से चलाओगे तो वही 200-300 रुपये बच पाते हैं, तो उसी में बच्चों को खिलाना सब लेना पड़ता है मैडम, सब मोल ही मोल लेना पड़ता है इसमें। Delhi government's EV policy in its report had an ambitious goal, which is to increase the sale of battery electric vehicles in such a way that it contributed to 25% of all new vehicle registrations by 2024. However, this plan has hit quite a few roadblocks, and it is not just due to the lack of finance, they have other concerns too. महंगा है, उतना किराया हम लोग भर नहीं पाएंगे, उतना किराया हम लोग भर नहीं पाएंगे। और पहली बात है जो यहाँ पे वो चलता नहीं है, और कैलाश कॉलोनी में चल रहा है, यहाँ तो चल नहीं रहा है। और वो चलने के बाद फिर ऑटो वाले और रिक्शे वाले ये जो है इनके मतलब जो धंधा खत्म हो जाएगा, नहीं समझे? तो यही बात है। और बैटरी का कोई करने का चार्ज करने का कोई नहीं। हाँ यही बात है, चार्ज कहाँ हम लोग चार्ज कहाँ करेंगे? रूम में लेते मालिक रहने देंगे, अच्छा उनका किराया भी महंगा होगा जी, ये बात होता है, इसलिए हम लोग वहाँ से नहीं करते। तो यहाँ हम रखेंगे, यहाँ कॉल को हो सकता है चोरी कर लेगा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा भरेंगे? हम गांव में भी लोन पर कर्जा नहीं लेते हैं। चोरी यहाँ ये रिक्शा चोरी हो जाता है, वो रिक्शा चोरी करने में कितना टाइम लगेगा? ये बात है कि हम लोग ये 40 रुपये दे रहे हैं, और इससे हम अपना 300-400 भी जो भी होता है अपना कमा रहे, खा रहे, पर किराया रिक्शा किराया जो खा पी के बचता है घर अपना 1000-2000-4000 भेज देते हैं। ये बात है कि ये भी रिक्शा यहाँ लगा देते हैं, कितने रिक्शे चोरी हो गया, 10-10 रिक्शा एक दिन में चोरी हुआ है। तो उतना हम लोग गरीब आदमी को पैसे कहाँ से लगेंगे? कमा रहे हैं, और शाम को 40 रुपये उसको किराया दे देते हैं, हम अपना घर चला जाते हैं। जहाँ कहता है गरीब रिक्शा खड़ा करने के लिए, मैं वहाँ खड़ा कर देते हैं। और क्वार्टर किराए का 800-1000 रुपये महीना हम लोग देते हैं, कभी 600 रुपये होता है, कभी 800 कब बढ़ा देता है मालिक लोग, तो क्वार्टर में रहते हैं। साइकिल देखिए, उसका ही एक रूट है, वो बैटरी रिक्शा जो है ना मेन रोड पे उसको नहीं चलाना अलाउ है, कि वो जाम लगा देता है, हर जगह 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 वो रोकना पड़ता है, बड़ी गाड़ी को डिस्टर्ब होता है। इसीलिए वो जो है ना, इसीलिए उसका रूट एक ही रूट अंदर वाली रूट कर दिया है, मेन रोड हाईवे में नहीं चला सकता है वो। और मैं तो चला लूँगा मेरा, क्योंकि ये सबसे नीच क्वालिटी का है, तो ये इसको चलने का कोई मतलब रोक नहीं है। ये रिक्शा ये है कि बच्चे के स्कूल लाना हो या मैडम को कहीं जाना हो या ऑफिस जल्दी है, तो भीड़ भाड़ से पतली गली से निकल जाते हैं, कोठी के अंदर से। This is Sukriti Vats reporting for The Print.